ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀਬੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦਾ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੋਲਫ ਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਐਜ਼ ਅ ਸਪੋਰਟ ਜੋ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕਾਫੀ ਫੇਮਸ ਹੈ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਤੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਈ ਨੰਬਰਸ ਲਾਈਕ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੋਲਫ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਹੁਣ ਉਹ ਨੰਬਰਸ ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। So we identified this situation and aimed to take up the golf as a sport and support the children who are needy, who can't play or get coached for the sport. ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਡਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉੱਧਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ 2028 ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਏਮ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ। the team management ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਐਂਡ a lot of minds went through it। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਟੱਡੀ ਵਾਸ ਟੇਕਨ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਟੀਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਹੈਵ ਅ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ। ਉਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਈ ਐਮ ਵਰਕਿੰਗ, 80% ਆਫ ਆਰ ਗੋਲਫਰਸ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ, ਬਟ ਮਾਰਨਿੰਗ 6 to 8 ਅਸੀਂ 7 ਵਜੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ 6 ਵਜੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਪੌਣੇ 8 ਵਜੇ ਵੀ ਆ ਜਾਈਏ, ਦੇ ਵੁੱਡ ਬੀ ਸਮਨ ਵੇਟਿੰਗ ਐਟ ਦ CGA ਰੇਂਜ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ 6 ਵਜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ 7 ਵਜੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ 7 ਤੋਂ 8 ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ 18 ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਵ ਆਰ ਕਿਡਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਸੋ ਕਿਡਸ ਨੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ 6 ਤੋਂ 7 ਆ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮੋਡਿਊਲ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ, ਲਾਈਕ ਡਾਕਟਰ ਅਬਰੋਲ ਨੇ, ਹੀ ਇਜ਼ ਐਨ ENT ਸਰਜਨ ਬਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਪਾਰਟ ਆਫ ਆਰ ਟੀਮ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਦੇਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 4 ਤੋਂ 5 ਆ ਜਾਓ। ਬਟ ਏਮ ਕੀ ਹੈ? golf improves when you have more than at least 1000 to 1500 ball contacts per week. What is a ball contact? Ball contact is ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਰੇਂਜ 'ਚ ਮਾਰੀ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚਿਪਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਲੇ ਨੂੰ ਬਾਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 12 ਤੋਂ 1400 ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਲੱਗਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਏਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗੋਲਫਰ ਦੇਖ ਲਓ, everyone will say your contact with the ball is must and we are focusing on that. Then obviously our extra sports psychologist, no team has a sports psychologist. Golf is 60% mental game. When you are performing under pressure, there are 200 people cheering for you. ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਟ ਮਾਰਨੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਟ ਮਾਰਨੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਲੀਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗੋਲਫ ਕਲੱਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਪੀਪਲ ਟੂ ਚੇਅਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਟੂ ਚੇਅਰ ਯੂ। ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੇਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਯੂ ਨੀਡ ਸਪੋਰਟ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਬਲੈਸਡ ਕਿ GB ਲੈਜੈਂਡਸ ਹੈਡ ਗੋਨ ਇਨਟੂ ਡੈਪਥ। ਮਤਲਬ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਫਸਟ ਟੀਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਬਣਾਈ ਹੈ which may not give results in the first year, but we are so sure that in the coming years this team is actually would be a talking point of the town in giving something back to the society, giving back something to the sport and to the Chandigarh Golf Club, all of these। ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਕੁਝ ਦੇਈਏ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੈਲਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਨਾ ਸਪੋਰਟਸ ਇੱਕ ਇੰਟੈਗਰਲ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਥ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਦੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਖੋਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹਨੂੰ ਐਲੀਟ ਸਪੋਰਟ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣ ਨਾਲ 2 ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਯੈਸ ਦਾ ਐਲੀਟ ਪਲੇ ਦਿਸ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੈਟਵਰਕ ਆਪਣੇ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰਸ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਐਬਿਲਿਟੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਟੂ ਮੇਕ ਅ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਬਡਿੰਗ ਗੋਲਫਰਸ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਫਰੋਮ ਹੰਬਲ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਦਿਸ ਨੈਟਵਰਕ ਆਫ ਪੀਪਲ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਟੈਲੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਲਾਰੈਂਸ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਰਚਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਨੀਥਿੰਗ ਦੇ ਨੀਡ ਫਰੋਮ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਟੂ ਕੋਚਿੰਗ
ਟੂ ਮੈਂਟਲ ਫਿਟਨੈਸ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ, ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਮ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟੂ ਦੀ ਐਂਡ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਇਨ ਦ ਸਪੋਰਟ, ਇਨ देयर ਲਾਈਵਸ, ਇਨ देयर ਕਰੀਅਰਸ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ। मेरा नाम रूपवंत है और मैं 10 साल का हूँ। ये रूपवंत, ये बताइए कि जो आपकी ट्रेनिंग हो रही है, काफ़ी हार्ड ट्रेनिंग है, आपको क्या क्या चीज़ें सिखाई जा रही हैं इसमें? मुझे सिखाया जा रहा है कि गोल्फ को एक्यूरेट कैसे खेलते हैं, क्योंकि गोल्फ गेम ही एक्यूरेसी की है। तो कितनी ट्रेनिंग आप करते हो दिन में, उसके बारे में बताइए कि आपका रूटीन क्या रहता है? दिन में मैं दो घंटे ट्रेनिंग करता हूँ शाम को। तो उसमें ट्रेनिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये थोड़ा बताइए। ट्रेनिंग में जैसे गोल्फ है उसके 3 स्टेजेस है, चिपिंग, पटिंग एंड हिटिंग। पहले मैं आधा घंटा हिटिंग, चिपिंग, पटिंग एंड देन आई गो टू होम। तो इसमें आपको आगे जाके आपका क्या एम है कि आप क्या और अचीव करना चाहते हैं? ऑलरेडी आपने काफ़ी अचीव करा है, यस। थोड़ा बताइए। मुझे बस इंडिया टीम में आना है एंड आई वांट टू, मतलब मुझे स्कॉलरशिप पे अमेरिका जाके स्टडीज़ करनी है अपनी। और उसके बाद आई मतलब प्रिपेयर IAS। अच्छा, फिर वापस आने का हाँ प्लान जी। है? थैंक यू। हाँ, आपका नाम? मेरा नाम रज़ा कौर है और मैं 18 साल की हूँ। रज़ा, ये बताइए कि ये जो आप एज अ यूर अ गर्ल और इसमें आप हैं, तो कम हैं गर्ल्स गोल्फ में, तो आप कैसे इसको डील करती हैं कि चारों तरफ तो ज़्यादातर मेल्स ही हैं, तो डू यू फील कि आपके लिए मुश्किल है गेम? ये सच है कि गोल्फ अभी इंडिया के अंदर मेल डोमिनेटेड ज़्यादा है, बट अब आने के समय के अंदर गर्ल्स बहुत आ रही हैं गोल्फ के अंदर। जैसे हम चंडीगढ़ गोल्फ क्लब को ही ले लें तो मेरे साथ कम से कम 20 या 30 लड़कियां और हैं मेरी एज ग्रुप की जो साथ में खेल रही हैं। तो हाँ, लड़के ज़्यादा हैं नंबर में, बट अब आने वाले ईयर्स के अंदर लड़कियाँ भी छाएंगी गोल्फ के अंदर। वेरी नाइस। तो ये बताइए कि आपका जो ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में बताइए कि क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको दी जा रही हैं, ये जो GB लेजेंड्स के अंदर आप ट्रेन कर रही हैं, ये बताइए। GB लेजेंड्स के साथ में पिछले 2 महीने या फिर 3 महीने के साथ अब मैं ट्रेन कर रही हूँ। तो हमारा यहाँ पे 6 बजे शुरू हो जाता है प्रोग्राम, तो मैं 6 बजे आ जाती हूँ यहाँ पे। तो 6 बजे हमारी पहले हिटिंग, जैसे बताया, हमारी पहले हिटिंग क्लास होती है। इसके अंदर हम एक्यूरेसी, अपनी स्पीड, लेंथ, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सारा कुछ बीच में करते हैं। इसके बाद हम चिपिंग, पटिंग सारी प्रैक्टिस होती है। पर जो GB लेजेंड्स की ख़ास बात है, ये सिर्फ आपकी गोल्फ की टेक्निक या फिर सिर्फ स्किल डेवलपमेंट नहीं करते, ये इसके साथ एक और होलिस्टिक डेवलपमेंट करने के लिए हमारी फ़िटनेस ट्रेनिंग, पहले फ़िटनेस टेस्टिंग, हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं, कहाँ पे हम अच्छे हैं, हमारा बैलेंस कैसा है, हमारी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कैसी है, उस सारे के अंदर हमारी हेल्प करते हैं। और हमारी साइकोलॉजिकल हेल्प भी करते हैं। जैसे मैम अभी आपकी इंटरव्यू की थी, वो हमें बताते हैं हम कैसे अपने आप को फोकस कर सकते हैं, हम प्रेशर के अंदर, एंजाइटी के अंदर अपने आप को कैसे काम कर सकते हैं। तो ये ऐसा कैंप मैंने पहले कभी अटेंड नहीं किया था, जिसके अंदर हम सिर्फ गोल्फ को एज अ टेक्निकल और स्किल डेवलपमेंट कोर्स को छोड़ के हम एज अ होलिस्टिक डेवलपमेंट करके हम अपने सारे एंगल से अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपका नाम और आपकी एज? सुखलीन, मेरा नाम सुखलीन कौर है और मैं 11 साल की हूँ। तो सुखलीन, आपने काफ़ी अचीवमेंट्स करी हुई हैं, तो थोड़ा बताइए कि आपकी कौन सी गेम है? मेरी एथलेटिक्स गेम है और मैं रामाशंकर सर के पास प्रैक्टिस करती हूँ 6 फेस गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर। और जो GB लेजेंड्स के अंडर भी अब शुरू करी है आपने, तो उससे क्या फ़ायदे हो रहे हैं आपको, ये बताइए। मेरे को मोटिवेशन मिलता है और सपोर्ट मिल रहा है। तो सपोर्ट किस किस टाइप की मिल रही है, ये थोड़ा बताइए। जैसे फैसिलिटीज़ क्या क्या मतलब मिल रही हैं, जैसे आपको कोचेज़ हैं जो आपको क्या चीज़ें बताते हैं, थोड़ा सा बताइए कि कैसा लग रहा है आपको ये सारा करके चीज़ें। रनिंग एक्शन एंड कि कैसे और स्ट्रेंथ वगैरह बताते हैं और बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। ठीक है, तो अभी आगे आपका क्या प्लान है? जैसे कि अभी मेडल्स तो आप काफ़ी कलेक्ट कर रही हैं, तो आगे जाके क्या करना चाह रही हैं? मेरे को ओलंपिक्स खेलना है और मैं अपने इंडिया का नाम रोशन करना चाहती हूँ। और मेरे को 400 और 200 के अंदर गोल्ड मेडल चाहिए। वेरी नाइस। तो इसके लिए आप को ट्रेनिंग जो मिल रही है वो कितनी देर करती हैं आप ट्रेनिंग, और
उसके लिए कैसे प्रिपेयर कर रही हैं, जैसे आप ओलंपिक्स में जाना चाह रही हैं? मैं 3 घंटे प्रैक्टिस करती हूँ। सबसे पहले जैसे सर बताते हैं वैसे वर्क करती हूँ और बाद में डाइट वगैरह खाती हूँ। और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, फिटनेस ट्रेनिंग भी करती हैं आप? यस। तो आपको ये जो अभी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, तो उससे वो कैसा लग रहा है आपको, जो ओवरऑल आपको ग्रूमिंग कर रहे हैं, कोचेस भी हैं, साइकोलॉजिस्ट भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो आपको कैसा ओवरऑल लग रहा है कि इस प्रोग्राम में आने के बाद? बहुत अच्छा फील कर रही हूँ और थैंकफुल। और आगे जाके भी वो सपोर्ट करते रहेंगे आपकी, Yes. उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? मैं लेजेंड्स को थैंक्स कहना चाहती हूँ और बस। और आगे जाके क्या पर्टिकुलरली आप ओलंपिक्स में एम कर रही हैं? कि मैं 200 और 400 में गोल्ड जीतूँ और क्या कहते हैं, मैं अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करूँ, ये मेरा एम है। थैंक यू। आपका नाम? मेरा नाम सौरभ दास है और मैं 19 साल का हूँ। सौरभ, ये बताएं कि ये प्रोग्राम काफ़ी यूनिक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है यस सर। जीबी लेजेंड्स के अंडर, और आपको इसमें मौका दिया जा रहा है, तो आपको कैसा मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा बहुत अच्छा ओपिनियन रहा है कि सब लोग हेल्प कर रहे हैं, तो बता भी रहे हैं, कुछ चीज़ की ज़रूरत है तो वो दे भी रहे हैं और फाइनेंशियल भी सपोर्ट कर रहे हैं मुझे वो। तो उससे क्या क्या फ़ायदे आपको लग रहा है, क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव स्पोर्ट है हाँ जी हाँ और जी। आपको वो सारी बैकिंग मिल रही है, तो इसके बारे में क्या, जीबी लेजेंड्स के इस इनिशिएटिव के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा इनका इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छा, और सबको सपोर्ट भी करते हैं कि हाँ भाई कुछ ना कुछ करेगा, और बताते हैं अगर कुछ चीज़ गलती भी करता हूँ वो समझाते भी हैं कि ऐसे कर, नहीं तो ऐसे कर, कुछ ना कुछ तो कहीं से निकल जाएगा। सब लोग सपोर्ट करते हैं और सभी नॉलेज भी सपोर्ट कर रहे हैं काफ़ी। और सपोर्ट में क्या क्या चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं? मेरे अभी थोड़ा सा गोल्फ सेट्स प्रोवाइड किया है और शूज़, कपड़े एंड फाइनेंशियली जैसे कि ट्रैवल होता है तो उसके वो दे देते हैं पैसे। और एक सवाल आपसे लास्ट ये है कि वो जो कोचेज़ हैं और उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कोचेस काफ़ी अच्छे हैं और सब कुछ डिटेल में बताते हैं, कुछ इश्यूज होते हैं कि नहीं है तो ऐसे कर, नहीं तो ऐसे कर, काफ़ी डिटेल में बता रहे हैं और बेसिकली बता रहे हैं कि हाँ ऐसे करने से ये होगा वरना फिर ये हो सकता है, और ग्रीन से बता रहे हैं कैसे टर्निंग लेंगे कैसे नहीं लेंगे और आगे जाके क्या कर सकता है तो क्या नहीं कर सकता वो भी बता रहे हैं सब कुछ। तो अभी आपका प्लान क्या है, मतलब आगे ट्रेनिंग लेके क्या करना चाहते हैं? अभी जैसे ओलंपिक्स में जाना चाह रही हैं और बाकी लोगों के भी एम्स हैं, तो हाँ आपका जी, क्या है? मेरा भी एमेचर एंड प्रो मैच खेलने का है कि एमेचर में क्वालिफाई करना है, टॉप 10 के अंदर रहना है 1 साल, देन फिर मैं PGTI एमेचर में क्वालिफाई करूँगा, फिर वहाँ पे फिर मैं रैंकिंग में आना चाहता हूँ कि टॉप 10 ख़त्म करना चाहता हूँ। थैंक यू। आपका पूरा नाम क्या है और आपका डेजिग्नेशन क्या है जीबी लेजेंड्स में? तो मेरा नाम असीस सुंदर है और मैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हूँ जीबी लेजेंड्स के साथ। तो ये काफ़ी एक यूनिक कॉन्सेप्ट लेके आए हैं जीबी लेजेंड्स की। नॉर्मली कोचेस ट्रेनर्स ही होते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट क्या है और इससे आपको क्या लगता है, क्या हेल्प मिलती है टीम को? तो बहुत राइटली मेंशन किया गया था, हमारे होलिस्टिक वेलबींग पे काम करते हैं, है ना, और एक स्पोर्ट में होलिस्टिक वेलबींग एसेंशियल होती है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, एक गोल्फर के साथ काम कर रही थी मैं, एंड उन्होंने मुझे बोला कि सबसे मुश्किल काम गोल्फ में ये नहीं होता है कि स्विंग मारना होता है, उससे पहले की जो शांति होती है दिमाग में वो सबसे टफ पार्ट है। तो जहाँ मेंटल हेल्थ काम आती है, साइकोलॉजी काम आती है, वो इस काम में आती है कि वो साइलेंस को फोकस में कैसे कन्वर्ट करना है। अब वो साइलेंस फोकस में कन्वर्ट होगा तभी हम आगे मूव फॉरवर्ड करेंगे। तो मैं इनर गेम पे काम करती हूँ एसेंशियली। ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो आपको क्या लग रहा है कि जो बच्चे हैं, अब एक तो एल्डर्स भी हैं टीम में, बट नाउ इट्स अ चैलेंज टू ट्रेन द यंगर गर्ल्स एंड बॉयज, उसमें आप क्या पर्टिकुलरली देखती हैं, किस चीज़ का ध्यान रखती हैं? तो मुझे ऐसा लगता है व्हेन वी आर वर्किंग विद एडल्ट्स ना, तो उनके साथ वो बैरियर मेंटेन करके मूव ऑन करना फिर भी थोड़ा टाइम लगता है, बिकॉज दे आर स्टिल टेकिंग टाइम टू ओपन अप। आई फील लाइक इट्स कंपैरेटिवली ईजियर टू वर्क विद चिल्ड्रन, एंड स्पेशली चिल्ड्रन who don't know what's happening currently, है ना. So mental health is an alien concept for adults and children, even more so for children.
तो बच्चों के साथ बात करना इज़ कंपैरेटिवली ईजियर, सो आई ट्राई टू मेंटेन अ रैपो कि पहले उनके साथ बातचीत करूँ, उनको जानूँ, एक दोस्त की तरह समझूँ, एंड उसके बाद देन वी मूव ऑन टू व्हाट इज़ कमिंग अप फॉर देम। गेम में क्या प्रॉब्लम है, कभी कभी इनर क्रिटिक होता है, बच्चों में बहुत ज़्यादा इनर क्रिटिक होता है कि मैं ये डाउट है वो डाउट है, क्योंकि जब तुम गोल्फ के लिए जा रहे होते हो, यू डोंट जस्ट कैरी योर क्लब्स, you carry self doubt, you carry fear of failure, you carry the weight of expectations. तो especially for children these are some bits that I focus on, क्योंकि parental expectation भी होती है, societal expectation भी होती है. Those are areas that I specifically focus on with children. तो आप क्या टूल्स यूज़ कर रही हैं? एक आखिरी सवाल है आपसे कि क्या तरीके आप अपनाती हैं? तो आई वर्क इन 3 phases. वन इज़ असेसमेंट. सबसे पहले असेसमेंट करते हैं कि एसेंशली समझते हैं कि क्या है जो इंसान गेम पे आ रहा है, तो उसका मेंटल फ्रेमवर्क कुछ तो होगा ना. तो क्या मेंटल फ्रेमवर्क है, क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, क्या चीज़ उनकी स्ट्रेंथ्स हैं, वो हाइटन करेंगे, और जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं, कंसर्न्स आ रहे हैं, उनको वर्क अराउंड करने की कोशिश करेंगे. सो ये असेसमेंट फेज़ में करते हैं, ठीक है. इसके बाद सेकंड फेज़ में जब हम मूव ऑन करते हैं, दैट्स बेसिकली सेटिंग रूटीन्स. इसमें 2 तरह की रूटीन सेट करेंगे. एक प्री शॉट रूटीन्स, जिसके अंदर तुम शॉट करने से पहले, मारने से पहले उस फ्रेमवर्क में जा रहे हो. एक रूटीन जैसे जो भी सिंपलर रूटीन्स, सम कैन बी, जैसे ग्लव पे एक बहुत फेमस रूटीन है, बॉब रोटेला करके स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट है, वो यूज़ करते थे कि गोल्फ ग्लव पे वो लिख देते थे L और R, और उसमें मूवमेंट करते थे, और वो एक प्री शॉट रूटीन हो जाता था फ्रेमवर्क में आने के लिए. एक ग्राउंडिंग रूटीन्स होते हैं, वो एस्पेक्ट आ जाता है. ये सब आ जाते हैं रूटीन वर्क में. उसके बाद थर्ड जो एस्पेक्ट होता है वो विजुअलाइजेशन होता है. विजुअलाइजेशन में क्या होता है, दैट आवर माइंड डज नॉट नो द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ एक्चुअली रियल, कि जब मैंने सच्ची में खेला या फिर उससे पहले जब मैंने विजुअलाइज कर लिया. तो जब हम अपने ब्रेन को प्राइम कर देते हैं फॉर द शॉट, वी आर एबल टू एक्चुअली मेक इट हैपन. एक तरह की ड्रेस रिहर्सल होगी, दिमाग में लगा लो. तो दीज आर 3 फेजेस जिनमें हम काम करते हैं.